Definitely 10 out of 10. I will definitely recommend them to contact Indo-German Education. They'll definitely guide you through the process. Your process will be very easy and smooth, also very fast. So no tension. I would like to thank you as well as the entire Indo-German team for such a smooth process. जब मैंने खुद से ये सब ट्राई किया तो आई थॉट इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, पर जब मैंने आपसे ये सब कंसल्ट किया और आपका जो पूरा पहला सेशन था, आपने पूरा सिंप्लीफाई करके बताया कैसे कैसे हर चीज आप करते हो, एंड एवरीथिंग जस्ट गॉट क्लियर्ड, और फिर वो process was very easy then. So that was majorly missing here in Pune. इधर इधर के सब कंसल्टेंट्स थे, लेकिन I was not satisfied with their help and support. आप पूरा पहले से एंड तक पूरा सपोर्ट आप देते हो, इवन विद द फ्लाइट टिकट्स एंड द आफ्टर पार्ट में। मेजर थिंग इज आफ्टर यू रीच जर्मनी, सो वो सब भी आप हेल्प करते हो। यू आर बेस्ड इन पुणे, वी आर बेस्ड इन Right. सूरत, कभी भी हमको मिलने आए हो मैम? नहीं नहीं, 100% ऑनलाइन प्रोसीजर। 100% online procedure. And did you ever felt that you are in Pune, we are in Surat, no, long gap, long नो communication? नो नो, नेवर नेवर। So big congratulations, Arya ma'am, for your German student visa, for your थैंक यू bachelor's. सर। All the best. थैंक यू सो मच। I Okay. would like to thank you as well as the entire Indo-German team for such a smooth process. Okay. So Arya ma'am, thank you so much. And first of all, आप हमारे viewers को आप ये बोलिए that आपका इंडिया में आपका प्रोफाइल क्या था, IELTS में अपना स्कोर क्या है, before the further conversation. Yeah, okay. So I completed my 12th standard this year and I gave my IELTS. So my score was 7 bands. And I also gave Goethe certificate A1, A2 und B1. जी. And then I just contacted Privesh sir, and then he did the entire process, entire admission process as well as the visa process. Okay. So आर्य मैम, आपने 12th के बाद जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? देयर इज अ ह्यूज फ्लो फॉर अदर कंट्रीज, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. What was the major reason behind selecting Germany, especially for bachelors in Germany? एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच स्टडीज का, रिसर्च ओरिएंटेड, और मेरा जो कोर्स था वो वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल था, और जर्मन एक प्लस पॉइंट था, मुझे जर्मन आती थी, जी. and also it is quite, Germany is also quite affordable as compared to other countries, so that was also one of the reasons that I chose Germany. I chose Germany. And whose plan was it? Your family member, or it was your personal plan to move to Germany? My personal plan, and my family also supported me with everything. Gee, got it. And how did you convince your parents for studying in Germany? uh, they got convinced easily because I told them about you, and they also saw your videos on YouTube, and then we decided to register at Indo-German, and then you just did the entire process smoothly and everything just went excellent. So, Arya ma'am, the first part of the journey is how did you start the research for studying in Germany? आपने जब जर्मनी नक्की किया या जर्मनी डिसाइड करने के समय आप कैसे रिसर्च कर रहे थे स्टार्टिंग डेज में? I Googled a lot and I also searched on YouTube. Then I got a few reference videos as well, and on DARD website also मैंने देखा। तो YouTube पे जब मैंने देखा तो आपके सारे वीडियोस आए, और फिर मैंने आपसे ही डायरेक्टली कांटेक्ट किया, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे ही मुझे मिली। ठीक है, done. तो वो जो फर्स्ट फेज होता है, आपका भी जब वो फर्स्ट फेज था बिफोर मीटिंग में, क्या आप राइट। काउंसलिंग के लिए हर एक वेबसाइट यूट्यूब पे गो थ्रू कर रहे थे, और आप सीधा जब हमें आपने कांटेक्ट किया और हमारा जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, तो कितना इम्पैक्टफुल पड़ा था फर्स्ट काउंसलिंग जब आप खुद से सारी चीजें देख रहे थे, और जब आपने फिर एक कंसल्टेंट से पहली बार बात की हमसे, आप जब ने पहली बार बात की कि भाई ये स्टेप्स होंगे, ये प्रोसेस होगा, ये टाइमलाइन होगा और ये बजट होगा, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस पड़ता है एज ए स्टूडेंट? जब जब मैंने खुद से ये सब ट्राई किया तो आई थॉट इट वाज अ बिट डिफिकल्ट,
पर जब मैंने आपसे ये सब कंसल्ट किया और आपका जो पूरा पहला सेशन था, आपने पूरा सिंप्लीफाई करके बताया कैसे कैसे हर चीज आप करते हो, एंड एवरीथिंग जस्ट गॉट क्लियर्ड, और फिर वो प्रोसेस वाज वेरी इजी देन। ठीक है। तो और फर्स्ट काउंसलिंग आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल था, कितना मेजर रोल प्ले किया आपको प्रोसेस समझने के लिए, एंड स्पेशली योर फैमिली मेंबर्स, योर डैड? Yeah, we watched your videos. We also joined your Zoom session. तो आपने वो पूरा प्रेजेंटेशन आप एक्सप्लेन करते थे, तो इसीलिए और जो भी डाउट्स रहते थे आप इमीडिएटली वहाँ ही सब क्लियर करते थे, तो वहाँ पहले ही जूम सेशन में सब क्लियर था, और हमने वहाँ तभी डिसाइड कर दिया था कि इंडो जर्मन से ही पूरा प्रोसीजर करना है। सो आर्य मैम, एज यू मेंशन्ड आपने बहुत सारा रिसर्च किया था, तो आपको कई कंसल्टेंट्स की एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने मिली होंगी रिगार्डिंग राइट। स्टडी इन जर्मनी, फ्री एजुकेशन इन जर्मनी, या फिर लो ट्यूशन फीस इन जर्मनी, या अफोर्डेबल कॉलेजेस इन जर्मनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। तो राइट। आपने कहीं पे और पे भी काउंसलिंग सेशन बुक किया था, या डायरेक्टली आपने सीधा यहीं पे बुक किया था? नहीं, मैंने देखा था बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस, इवन आई विजिटेड अ लॉट ऑफ सेशंस हियर इन पुणे। पुणे। बट आपका मैंने जब वीडियो देखा और आपके बहुत सारे रिव्यूज भी देखे, तो इसीलिए डायरेक्ट कांटेक्ट तो डायरेक्टली आपसे ही किया था। ठीक है। और जो आपने पुणे के ऑफलाइन कंसल्टेंट्स विजिट किए थे और ऑनलाइन का जो ये काउंसलिंग जो फर्स्ट सेशन था, उसमें आपको मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ था? इधर इधर के सब कंसल्टेंट्स थे, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर हेल्प एंड सपोर्ट। आप पूरा पहले से एंड तक पूरा सपोर्ट आप देते हो, इवन विद द फ्लाइट टिकट्स एंड द आफ्टर पार्ट में। मेजर थिंग इज आफ्टर स्पीक यू रीच जर्मनी, सो वो सब भी आप हेल्प करते हो, तो दैट वाज मेजरली मिसिंग हियर इन पुणे। ओके। एंड देन जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, सो आप जो स्टूडेंट कलीग इन जर्मनी का प्रोसेस है, इट इज अ क्वाइट लेंथी प्रोसेस वी कैन से, एज कंपेयर राइट। टू अदर कंट्रीज प्रोसेस। राइट। इसमें क्लास 13 में अप्लाई करना, बैचलर्स के लिए अप्लाई करना, सो देयर इज अ कंप्लीट, देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स फॉर द एंटायर प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको सबसे पहले जब आपका एडमिशन आया, एक जर्मन पब्लिक यूनिट, हाँ हाँ हाँ, लेट्स मूव। तो आपको जब हमने आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस किया, तो टिल एडमिशन तक आपको प्रोसेस मेरे यहाँ से कैसा लगा था? It was very smooth, and it was quite fast as well. मैंने इमीडिएटली मैसेज किया ग्रुप पे, तो इमीडिएट रिप्लाई भी मिलता था, और आपसे कॉल कॉल से भी बात डायरेक्टली आपसे ही बात होती थी, तो जी। इमीडिएटली डाउट सॉल्विंग एंड क्वाइट फास्ट प्रोसेस एंड वेरी स्मूथ। ओके। एंड सेकेंडली, जब एडमिशन आया, वी ट्रांसफर द यूनिवर्सिटी फीस, मतलब स्टूडेंट कलीग की फीस, एंड बैचलर्स इन जर्मनी की फीस, अरे स्टूडेंट कलीग की फीस, एंड देन लेटर ऑन ब्लॉक अकाउंट का फीस। ब्लॉक अकाउंट। आपको कभी भी ये लगा दैट आप पुणे से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, दैट तो हम लोग सूरत हमारे मीडियम के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, तो वो फिर आपको कभी भी ये फील होता था नहीं भाई पुणे लोकल से करवाना ट्रांजेक्शन ज्यादा बेटर पड़ता? नहीं नहीं, उलट उससे अच्छा तो सूरत से ही इट वाज क्वाइट स्मूथ, इंस्टेड ऑफ पुणे, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम हियर। क्योंकि जी। आपने पूरा बताया था कैसा प्रोसीजर है, मैंने कॉल करके उनसे भी बात किया था आपके कांटेक्ट से, तो वहाँ इट वाज क्वाइट स्मूथ। गॉट इट। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इज मेरे यहाँ से वीजा का सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, ये सारी चीजें आपको कैसी लगी थी? आपने वीजा फाइल, मतलब मेरे यहाँ पे हमने आपको डिजिटली पूरा वीजा फाइल प्रोवाइड किया था, तो राइट। डिजिटली फाइल आपको कैसा लगा था वीजा का? बहुत ही अच्छा था, एंड इट वाज ऑल सॉर्टेड। आई जस्ट हैड टू प्रिंट आउट द डॉक्यूमेंट्स एंड देन द होल वीजा फाइल वाज रेडी। कोई टेंशन नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा या वो डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा। एवरीथिंग आपने सब कुछ प्रोवाइड किया था, जस्ट हैड टू द प्रिंट आउट द डॉक्यूमेंट्स एंड जस्ट सबमिटेड एट द वीएफएस। एंड जर्मनी का जो प्रोसेस है, लाइक इन इंडिया बिफोर बैचलर्स 12 तक का एजुकेशन, जर्मनी में बैचलर्स 13 तक का एजुकेशन। सो आपने देखो मैम, जब 13 की बात आती है तो इंडियन स्टूडेंट्स दो जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट वो 13 जर्मनी से करें
या फिर 13 जो है इंडिया में फर्स्ट ईयर इंडिया से कर ले. सो व्हाई यू ऑप्टेड फॉर स्टूडेंट कॉलेज इन जर्मनी, दैट टू इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, एंड व्हाई नॉट योर फर्स्ट ईयर इन इंडिया? आपने इंडिया में पहला साल क्यों ना करके जर्मनी का 13 प्रेफर किया एज अ स्टूडेंट? फर्स्टली टू इंटीग्रेट विद द जर्मन सिस्टम डायरेक्टली. बैचलर्स अगर मैंने किया किया होता इधर इंडिया में एक साल करके, तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू कोप अप विद द एजुकेशन सिस्टम. तो अगर मैंने यहाँ वहां जाके एक साल स्टूडेंट कॉलेज किया, तो इट वुड बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड देयर एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल्सो इंटीग्रेट विद द लोकल्स देयर. एंड जर्मनी का एक पिक्चर क्लियर हो सकता है एक साल में. तो गॉट इट. it will be easier. और बेटर फॉर अ स्टूडेंट अगर जिनको बैचलर जर्मनी में करना है, Right, क्लास 13 भी अगर जर्मनी से होता है तो वो स्टूडेंट के लिए एक कंफर्ट जोन भी हो जाता है कि सब कुछ नया नहीं लगता है. right. हमें मैम ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा स्टार्टिंग से लेके टिल गेटिंग द वीजा? I registered at Indo-German in June. जून. In June, mid, I guess, एंड mid of June. मिड And ऑफ नवंबर, in November, I got my visa. सितंबर अक्टूबर नवंबर, दैट November. इन द प्रोसेस ऑफ 5 मंथ्स आपका Yeah. केस हुआ, एडमिशंस आए, वीजा अपॉइंटमेंट का बुकिंग, द ट्रांजैक्शन एंड गेटिंग द वीजा इन Yes. नेक्स्ट 5 मंथ्स वी कैन से. ठीक है. Right. मैम जब भी हमने स्टूडेंट कॉलेज के लिए एप्लीकेशन किया उससे पहले आपके पास मे बी आईएलटीएस उसी समय था, राइट आपके पास? हाँ, नहीं. आपको आईएलटीएस के लिए कितना टाइम लगा था? IELTS के लिए मैंने एक मंथ की प्रिपरेशन की थी. Okay. And as we discussed before also that you have German B1 in India. Right. So what is the major reason to learn German in India before moving to Germany and that too till B1? और आपको क्या लगता है वो आपके लिए कितना एडवांटेज होगा in Germany? वहाँ इंटीग्रेट होने में बहुत इट वुड बी एडवांटेजेस. वहाँ हम्म. लोकल्स के साथ अगर कोई बात करनी हो, तो आई वुड बी एबल टू टॉक विद देम एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट दे आर स्पीकिंग. जी. वहां जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में, पब्लिक प्लेसेस में भी इट वुड बी इजी. That's it. तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रोल होता है अगर आपको जर्मन आती है और आपको राइट, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है आफ्टर गेटिंग योर नॉलेज टिल B1, आपको राइट, कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा कि राइट, ओके राइट. में प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2025 में 12th पास आउट करेंगे, आप हम्म. उनको क्या कहना चाहोगे कि भाई उनको जर्मन सीख के ही स्टूडेंट कॉलेज और बैचलर्स के लिए जाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी आपका स्टूडेंट कॉलेज में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, बैचलर्स जर्मन पब्लिक है लेकिन इंग्लिश टॉट में है, तो उन्हें जर्मन स्किप कर देनी चाहिए? व्हाट विल बी योर सजेशन? I would suggest them to learn at least till A1, A2, and जी. and also if they are looking to go to Germany, then please they should contact you, because you also provide A1, A2 classes. एक तो So कॉम्प्लीमेंट क्या आता है अपने यहाँ पे? right, so that would be really helpful for them. ओके. Yeah, मतलब इन्हें सजेस्टेड कि जर्मन सीखे जाए तो सीख उनके के जाए. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा. एंड हाँ, आपने इंडो जर्मन एजुकेशन के बारे में फर्स्ट टाइम कैसे देखा था? वाया यूट्यूब या वाया एनी अदर सोशल मीडिया? why YouTube? YouTube. डन. और पूरे जो प्रोसेस में आपके साथ घर पे कौन फॉलो अप लेते थे आपका? पापा और मम्मी दोनों. ओके, गॉट इट. Yeah. एंड इंडो जर्मन सिलेक्ट आपने किया था या पापा मम्मा ने किया था कि नहीं यहाँ से? तीनों, all three of us. ओके, टुगेदर. सो Yeah. एट फ्रॉम योर एंड मैम आपका क्या रेटिंग होगा फ्रॉम 0 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर योर एडमिशन एंड वीजा एंड द पोस्ट वीजा सर्विसेज कंप्लीटली? Definitely 10 out of 10. 10 out of 10. Yeah. दूसरे जो स्टूडेंट्स जो जर्मनी जाना चाहते हैं स्पेशली आफ्टर 12th जाना चाहते हैं, स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी में करना चाहते हैं और बैचलर्स एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आप आपके एंड से उनको क्या कहना चाहोगे? योर I कंप्लीट. will definitely recommend them to contact Indo-German Education. They'll definitely guide you through जी. the process. Your process will be very easy and smooth, also very fast. ओके. So, no tension. नो टेंशन. एंड यू आर बेस्ड इन पुणे, वी आर बेस्ड इन Right. सूरत. कभी भी हमको मिलने आए हो मैम? नहीं, नहीं. 100% online procedure.
100% online procedure. And did you ever felt that you are in Pune, we are in Surat, no, long gap, long commute? No, 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 never, never. Okay, ma'am. Thank you so much.